Assalamu alaikum class. Yesterday we started the chapter ecology, ecosystem, and now we will continue this chapter. First we will study the two different branches of ecology, which are art ecology and syn ecology. You have studied that ecology is the study of relationship of living organisms to their environment. But when we are studying a single population relationship to its environment, it is called as art ecology. Last lecture में मैंने आपको बताया था कि what is the difference between population and community. When we study the organisms or the members of a single species, then it is known as population. But when we study the relationship of all the species, then it is known as community. Community contains all the living organisms of all species in a habitat or in an ecosystem. Now, what is the difference between art ecology and syn ecology? That art ecology is the study of the relationship of population and environment, but there is only a single population. For example, you are studying 50 to 100 plants of soybean in order to know the effect of water pollution on their growth and yield. You are studying the single or one population of soybean plant. This is known as art ecology. art ecology में आप सिर्फ एक population के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, और वो एक पॉपुलेशन का मतलब है कि वो एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं या वो एक स्पीशीज के ही तमाम मेंबर्स हैं. जैसे यहाँ सोयाबीन के बारे में अगर रिसर्च हो रही है तो सोयाबीन जो है वो एक स्पीशी है और उसी के ऊपर काम हो रहा है और उसके ऊपर देखा जा रहा है कि वाटर पोल्यूशन जो है उसका उसकी ग्रोथ और यील्ड पे क्या इफेक्ट होगा. तो यहाँ पे एक प्लांट की बात हो रही है. इस तरह से अगर एक पॉपुलेशन का रिलेशनशिप स्टडी किया जाएगा तो वो आर्ट इकोलॉजी होगी. नाउ द नेक्स्ट इज सिन इकोलॉजी, और सिन इकोलॉजी में हम कम्युनिटी स्टडी करते हैं, इसलिए इसको कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहा जाता है. कम्युनिटी का मतलब है कि बहुत सारी पॉपुलेशंस या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस, और इसमें बहुत सी स्पीशीज का इंटरेक्शन जो है वो देखा जाता है. ग्रोथ रिस्पॉन्सेज ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स टू देयर एनवायरनमेंट्स आर अ कॉम्प्लेक्स फैक्टर. कि हम अलग अलग तमाम प्लांट्स के अगर रिस्पॉन्सेज देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स फैक्टर होगा. वन फैक्टर कैन अगेरावेट द अदर फैक्टर. These factors interact with one another. कि एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट को इफेक्ट कर सकता है. जैसे वो अगर जो प्लांट है वो ज्यादा, अगर उसकी रूट्स जो हैं वो लॉन्ग हैं, डीप हैं, तो वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और वाटर ले लेगा, और उसके मुकाबले में दूसरे प्लांट्स जो हैं जिनकी रूट्स शॉर्ट हैं वो नहीं ले सकेंगे. तो इसका मतलब है कि एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट को इफेक्ट करता है और इन तमाम का आपस में इंटरेक्शन होता है. These factors interact with one another. Complexity of environment depends upon the combination of various factors. तो एक environment जो है उसमें बहुत से factors का effect होता है और वो मिलकर उसके मुताबिक तमाम plants जो हैं उनकी growth हो रही होती है. The study of the relationship of different communities to their environment is called syn ecology or community ecology. तो जब हम group of populations को और communities को study करते हैं तो फिर इस branch को हम कहते हैं syn ecology. तो दोनों में क्या फर्क हुआ? Art ecology is the study of a single population and syn ecology is the study of a community with the combination of different organisms. और उसमें हम बहुत से factors को study करते हैं और इस तरीके से हम उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है फैक्टर्स स्टडी करते हैं.
When you study only one population at different places in environment, it will be odd ecology. कि जब हम सिर्फ एक पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे होते हैं तो वो odd ecology होगी. But when you see all the populations at the same time, it will be syn ecology. तो इसका मतलब है कि जब हम बहुत सारी populations को study करेंगे तो वो syn ecology होगी. In syn ecology, you have to see the various aspects of community like origin. हमें जब हम सिन इकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमने कौन कौन सी चीजों को देखना है, उसका ओरिजिन देखना है, उसका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन. स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का मतलब है कि उसमें कितनी टाइप की स्पीशीज है, कितनी टाइप की पॉपुलेशंस हैं जो उसका स्ट्रक्चर बना रही हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है. तो जब हम सिन इकोलॉजी स्टडी करते हैं तो हम ये तमाम पैरामीटर्स देखते हैं जिसमें ओरिजिन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन आ जाती है. यू हैव टू कंसिडर द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी. मतलब ये है कि आपको उस कम्युनिटी की हिस्ट्री भी स्टडी करनी होती है कि एक एरिया में अगर एक कम्युनिटी डेवलप हुई है तो वो उसकी हिस्ट्री क्या थी, कितना अरसा पहले वहां पे कौन कौन से प्लांट्स थे, अब वहां पे कौन कौन से आ चुके हैं. And also its dynamics, because community is not a fixed entity but different changes are going to occur at different times. तो हमें देखना है कि वो जो कम्युनिटी है वो कितनी ग्रो की है, पहले वो कैसी थी अब वो कैसी है, क्योंकि उसके अंदर चेंजेस आई होंगी वक्त के साथ साथ. मुख्तलिफ किस्म के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके भी इफेक्ट्स आते हैं और इस तरीके से फिर उसमें चेंजेस आती हैं. तो हमने वो तमाम चेंजेस जो हैं उनको स्टडी करना है. While studying the community, we come across 3 levels of integration. पहले हम ये बात कर चुके हैं कि जब भी हम कोई स्टडी कर रहे होते हैं तो हम 3 चीजें देखते हैं. 3 लेवल्स कौन कौन से? पहला इंडिविजुअल, ये एक मेंबर का लेवल. उसके बाद उस स्पीशीज के तमाम ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स जो कि पॉपुलेशन बनाते हैं, और फिर द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस इन एन इकोसिस्टम, और वो कम्युनिटी बनाते हैं. तो जब भी हम सिन इकोलॉजी स्टडी करेंगे तो हम उसमें 3 लेवल्स देखेंगे: इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल. और इस तरीके से फिर हम उसको स्टडी करेंगे. अब ये देखा गया है, यहाँ पे 2 पिक्चर्स हैं. अ पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं इसलिए ये पॉपुलेशन है और इसकी स्टडी जो है वो ऑर्टिकोलॉजी होगी. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बर्ड्स भी मुख्तलिफ हैं, प्लांट्स भी हैं और भी बहुत सारी यहाँ पे ग्रासेस, सब कुछ. तो ये कम्युनिटी है क्योंकि इसमें बहुत सी स्पीशीज जो है वो आपको नजर आ रही हैं. इनकी जब हम स्टडी देखेंगे तो वो फिर सिन इकोलॉजी होगी. तो ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी जो है दोनों डिफरेंट हैं और ये दोनों इकोलॉजी की ब्रांचेस हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. और इकोसिस्टम के 2 मेन कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स का मतलब है कौन कौन से 2 मेन पार्ट्स हैं या 2 मेन हिस्से हैं और वो इकोसिस्टम बनाते हैं, और उसमें 2 मेन चीजें हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट्स और एक एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक का मतलब लिविंग, एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग या फिजिकल. और बायोटिक कंपोनेंट्स में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद हैं, शामिल हैं. और ये कहाँ होंगे? बायोस्फीयर में. मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि जो बायोस्फीयर है ये वो एरिया है जमीन के ऊपर जहां तक के लाइफ मुमकिन है और जहां पे हमें लाइफ नजर आती है, इसके बाद लाइफ नजर नहीं आती. तो बायोस्फीयर में तमाम बायोटिक कंपोनेंट्स वो होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे. Biosphere is spread out over the surface of the planet Earth, extending about 8 to 10 kilometers to the upper reaches of atmosphere and also the same distance into the depth of the ocean. तो 8 से 10 किलोमीटर मतलब कि जमीन के सरफेस से अगर आप देखें तो जमीन के अर्थ सरफेस से 8 to 10 किलोमीटर ऊपर और 8 to 10 किलोमीटर नीचे जो एरिया है यहाँ पे लाइफ हमें मिलती है. इसके बाद आगे और नीचे लाइफ नहीं होती या बहुत कम है या नामुमकिन है.
तो ये वाला तमाम जो एरिया है इट इज बायोस्फीयर, और इसमें जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं ये तमाम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं उनमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, उसमें एयर है, वाटर है, सॉइल है। हवा, पानी और जमीन की जो मिट्टी है, सॉइल, ये तमाम चीजें। इन इकोलॉजिकल टर्म दे आर कॉल्ड एज, अब हमने अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बायोस्फीयर की टर्म यूज की थी, तो यहाँ भी हम इसी तरह से टर्म्स यूज करेंगे। क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है, इसलिए हम हर चीज के साथ स्फीयर लगा देते हैं। अर्थ के ऊपर का सारा एयर वाला पार्ट एटमॉस्फेयर होगा। इसी तरह वाटर वाला जो अर्थ का एरिया है सारा, वो हाइड्रोस्फीयर होगा। और जो खुश्की वाला एरिया है वो लिथोस्फीयर होगा। तो ये तीन टर्म्स जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। कौन कौन सी? एटमॉस्फेयर एयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर वाला एरिया अर्थ का। आपने देखा जितने ओशंस हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, वो सारा हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। उसके अलावा जमीन पे जो खुश्की का हिस्सा है या सॉइल वाला एरिया है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। और ऊपर जितना एयर का पार्ट है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो ये दोनों तो हो गए बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हमने देखना है कि जो एक इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से आपस में इंटरैक्ट करते हैं और कौन से वो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सी इंटरैक्शंस हो सकती हैं। The main processes occurring in an ecosystem include feeding and the circulation of chemical elements together with the energy flowing through the ecosystem. तो interactions या कौन सी हैं, कौन से processes हो रहे हैं। एक तो feeding है कि तमाम जानवरों ने खाना है, वो feed करते हैं। फिर केमिकल एलिमेंट्स की सर्कुलेशन, जैसे हम अगर सपोज प्रोटीन्स हम खाते हैं तो वो हम प्रोटीन्स कहाँ से लेते हैं? गोश्त से, जानवरों से लेते हैं। इसका मतलब है प्रोटीन्स की जो एनर्जी है, जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, वो एनिमल से हमारे अंदर आ गए। इसी तरह डेड बॉडीज जब ह्यूमन बीइंग्स की और एनिमल्स की डेथ और डिके होती हैं तो फिर ये एलिमेंट्स दोबारा, जैसे नाइट्रोजन वगैरह हैं, ये दोबारा सॉइल में चले जाते हैं। तो ये एक सर्कल होता है एनर्जी फ्लो का और केमिकल्स का, जो चेंज होते हैं एक एलिमेंट से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में चले जाते हैं। एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स हैं मेन जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डीकम्पोजर्स हैं। और ये तमाम फीडिंग की वजह से आपस में कनेक्टेड हैं। सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड फ्लो ऑफ एनर्जी, तो ये तीनों में देखें कि इसमें एलिमेंट्स की सर्कुलेशन भी है, एनर्जी का फ्लो भी है और फीडिंग प्रोसेस भी है। सबसे पहला लेवल इसमें आ जाता है प्रोड्यूसर्स का। और प्रोड्यूसर्स जो है दे आर द ग्रीन photosynthetic plants which capture and bring light energy into the ecosystem. Sorry. They are able to manufacture organic food from simple organic substances. They are autotrophic organisms. पहला लेवल हमेशा इकोसिस्टम का जो मेन बायोटिक कंपोनेंट है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स वो हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफिक। ये अपना फूड खुद बनाते हैं। फूड जो बनाते हैं वो ऑर्गेनिक होता है क्योंकि शुगर्स आर ऑर्गेनिक, लेकिन वो बनते इनऑर्गेनिक एलिमेंट से हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों इनऑर्गेनिक हैं, लेकिन इन दोनों से मिल के जो है वो शुगर्स बनती हैं और शुगर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं। तो वो जो ऑर्गेनिक हैं वो शुगर्स हैं और वो फूड बन रहा है जो प्लांट्स खुद बना रहे हैं, एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक। तो प्लांट्स जो है वो लाइट एनर्जी जो है वो
सेव करते हैं और उससे वो केमिकल एनर्जी बनाते हैं और फूड बनाते हैं। दूसरा लेवल है कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिजम्स, प्राइमरीली एनिमल्स, जिनको हम हर्बीवोर्स भी कह सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर से लेते हैं एज रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड। दे आर मेनली हेट्रोट्रॉफिक। और कंज्यूमर्स जो हैं ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, उनका प्रिपेयर्ड फूड ये खाते हैं। जैसे हम भी कंज्यूमर्स में आते हैं, क्योंकि हम तमाम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं और वो प्रोड्यूसर्स ने बनाई होती हैं और हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं और हम उनका रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड लेते हैं। तो हम भी कंज्यूमर्स में आ जाते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। द थर्ड लेवल इज डीकम्पोजर्स। और डीकम्पोजर्स जो हैं ये डीकम्पोजिशन का काम करते हैं। जितना भी प्लांट्स एनिमल्स का डेड ऑर्गेनिक मैटर है या डेड बॉडीज हैं, उनको डीकम्पोज करके एनर्जी लेते हैं। मतलब ये कि उनके जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं और उस तरह से एनर्जी हासिल करते हैं। और ये दो मेनली डीकम्पोजर्स हैं, एक फंजाई और एक बैक्टीरिया। They obtain energy from the dead and decaying plant and animals. They release chemical elements as ions. The main chemical ions are nitrate, ammonia, phosphate, potassium, calcium. तो ये तमाम आयंस या फ्री आयंस या सॉल्ट्स की फॉर्म में या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रिलीज करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जिसमें प्रोटीन्स होती हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। लेकिन जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर ये नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट, पोटाशियम, कैल्शियम इनमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये दोबारा से ये जो आयंस हैं, ये सॉल्ट्स हैं, ये सारे जमीन में चले जाते हैं और फिर ये प्लांट्स दोबारा से इनको रूट्स के जरिए ले लेते हैं और फिर से फूड प्रिपेयर करते हैं। और इस तरीके से इनका साइकिल जो है वो चलता रहता है और ये तमाम जो आयंस हैं ये दोबारा से ऑर्गेनिक फॉर्म में चले जाते हैं। फिर डेथ एंड डिके हुआ, फिर उसके बाद ये फ्री हो गए दोबारा से, फिर दोबारा प्लांट्स ने ले लिया, फिर उन्होंने इनको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से ये एक साइकिल की फॉर्म में चलते रहते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? पहले हमने पढ़ा हॉर्टिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी की क्या डिफरेंस है। Horticology is the study of a population, interaction with the ecosystem, with the habitat, with the environment. Synecology is the community ecology, a study or relationship of community or a group of populations living in an ecosystem. और interaction जो है वो किसका है? community का with that of the environment. उसके बाद फिर हमने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। बायोटिक फैक्टर्स जो लिविंग हैं और वो बायोस्फीयर बनाते हैं, और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो एयर, वाटर और अर्थ या सॉइल हैं। एटमॉस्फेयर आ जाता है, उसमें हाइड्रोस्फीयर आ जाता है, लिथोस्फीयर आ जाता है। उसके बाद फिर जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो 3 किस्म के हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स जो हैं दे आर ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, और ये तमाम जितने भी दुनिया में पौधे हैं, चाहे वो मॉसेस हैं, चाहे वो एल्गी है, चाहे वो हायर प्लांट्स हैं, वो तमाम प्रोड्यूसर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। कंज्यूमर्स जो कि इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं और वो खुद से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं और उनसे प्रिपेयर्ड फूड लेते हैं। और डीकम्पोजर्स जो डीकम्पोजिशन करते हैं और डेड बॉडीज को डिके करते हैं और उससे ये डीकम्पोजिशन करके अपना फूड मटेरियल लेते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो डेड बॉडीज के हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू आयंस एंड सिंपल सॉल्ट्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। Now come to the next point, which is food chain. अब आज के लेक्चर में आपने 2 चीजें और पढ़नी है, एक फूड चेन है और एक फूड वेब है, और हम बारी बारी देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। फूड चेन, all animals depend on plants for their food.
मतलब ये है कि तमाम एनिमल्स जो हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर। इसका मतलब है प्रोड्यूसर्स जो एनर्जी बनाते हैं वो कंज्यूमर्स में आ जाती है, और कंज्यूमर्स जो एनर्जी कुछ उसमें से यूज कर लेते हैं और बाकी डिकम्पोजर्स ले जाते हैं। तो एनर्जी का फ्लो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और कंज्यूमर से डिकम्पोजर तक जो है वो एक फूड चेन कहलाता है। ईगल में ईट ब्लूबर्ड, bluebird eats insects like caterpillar, and caterpillar feeds on grass or green leaves. This is an example of a simple food chain. ये एक सादा सी food chain है जिसमें जो grass है, green leaves है, उनको कौन खाता है? caterpillar. caterpillar जो है उसको कौन खाता है? bluebird. और bluebird को कौन खाता है? eagle. तो ये एक सिंपल सी फूड चेन है कि जो कि ग्रास से शुरू होती है और ईगल तक चलती है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है? फूड वेब। फूड चेन तो एक सिंपल सा लिंक है जिसमें प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको कंज्यूमर्स खा रहे हैं। कंज्यूमर्स के आगे से लेवल है, डायरेक्टली जो प्लांट्स को खाएगा जो भी एनिमल, जैसे कैटरपिलर है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। कैटरपिलर को ब्लू बर्ड खा रहा है तो ब्लू बर्ड जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, और ईगल जो है जो कि ब्लू बर्ड को खाएगा वो टर्शरी कंज्यूमर होगा। तो ये तो एक सिंपल सी फूड चेन थी, लेकिन जब एक एरिया में बहुत सी फूड चेन्स का कॉम्बिनेशन होता है और बहुत से लिंक्स डेवलप हो रहे होते हैं तो वो वेब बन जाता है। और फूड वेब्स जो हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फूड चेन्स, और इस तरह से वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाते हैं। Because most animals eat more than one type of food at different times, as fox does not feed entirely on rabbit but also take beetles, rats. मतलब ये कि फॉक्स एक सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकती है और टर्शरी भी। उसने शिकार करके खाना है तो वो सेकेंडरी वो प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा सकती है, वो सेकेंडरी को भी खा सकती है। इस तरह से फिर जब बहुत सी फूड चेन्स मिक्स हो जाती हैं तो फिर वो वेब बन जाता है, और जो बड़े बड़े इकोसिस्टम्स हैं उनमें बहुत बड़े बड़े फूड वेब्स होते हैं। All the food chains and food webs begin with green plant and may consist of 3 to 5 links. और ये जो इतने लिंक्स हैं जिसमें एक प्रोड्यूसर्स है, फिर 3 टाइप के कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और आखिर में डिकम्पोजर। ये कितने लिंक्स बन गए? 5। और इनको हम कहेंगे ट्रॉफिक लेवल या एनर्जी लेवल। ये सबसे पहले प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी थी। प्रोड्यूसर्स ने जो एनर्जी बनाई है वो उसने सन से लेके बनाई है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में बनाई है। और फिर उनकी एनर्जी कहाँ गई? प्राइमरी कंज्यूमर के पास वो दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, उनकी सेकेंडरी के पास वो तीसरा ट्रॉफिक लेवल है, उनकी टर्शरी कंज्यूमर के पास वो चौथा ट्रॉफिक लेवल है, और फिर डीकम्पोजर्स जो हैं दे आर द 5th ट्रॉफिक लेवल। और ये 5 लिंक्स हैं या 5 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब हम पहले फिगर को देखते हैं। फिगर जो है उसमें सबसे नीचे अगर आप देखें तो ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं, ये ग्रास है। ग्रास जो है ये है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर्स जो हैं इनको कौन कौन खा रहा है? प्रोड्यूसर ग्रास इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, टी इज फॉर ट्रॉफिक लेवल, और यहाँ T1 लिखा हुआ है। T1 को कौन कौन खा रहा है? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। वो कौन कौन है? बीटल है, रैट है, रैबिट है। These are all primary consumers because they are directly eating the grass, और इनको हम प्राइमरी कहेंगे। इनको अब कौन कौन खाएगा? इनको T3 खाएंगे। T3 कौन कौन है? फॉक्स है, आउल है, डॉग है। अब देखिए रैबिट को आउल भी खा रहा है, फॉक्स भी खा रही है। इसी तरह से मतलब
ये अब आपस में मिक्सिंग शुरू हो जाएगी। ये अगला ट्रॉफिक लेवल है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल T3। अब डॉग क्या है? डॉग जो है वो T4 भी है, मतलब ये डायरेक्टली रैबिट को भी खा रहा था तो T3 था, लेकिन अगर ये आउल को खाएगा, क्योंकि आउल खुद T3 या सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो फिर ये कौन होगा? ये T4 या टर्शरी कंज्यूमर। तो ये टर्शरी कंज्यूमर लेवल है, और टर्शरी कंज्यूमर जो है, ये डॉग जो है, ये क्योंकि ये आउल को खा रहा है और ये T4 है। अब इसका जब डेथ डिके होगा आफ्टर डेथ, तो वो फिर डिकम्पोजर्स होंगे जो T5 कहलाएंगे, और वो फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल होगा। तो ग्रास इज T1, decomposers are T5, बीच में T2, T3 and T4, they are all consumers. T2 कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली ग्रासेस को खाते हैं या प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। T3 आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन है? जो कि T2s को खाते हैं। और T4 कौन है? जो T3s को खाते हैं। और T4s जो हैं वो T2s को भी खा सकते हैं, T3s को भी खा सकते हैं, लेकिन वो टर्शरी लेवल पे आ जाते हैं। दे आर द टर्शरी कंज्यूमर्स। और फिर इन कंज्यूमर्स को कौन खाएगा? उनकी डेथ और डिके होगा किसकी वजह से? बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से। और अब हम इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं एंड पे, कि फूड वेब जो है वो भी आपको मैंने जो पढ़ाया है उसी की डिस्क्रिप्शन है ये सारी। इन अ फूड वेब यू विल फाइंड मोर complex trophic levels or food links. In a food chain, T1 is first trophic level, include all green plants, grass, और जैसे अगर वो पानी है तो पानी में जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स आर द फ्लोटिंग प्लांट्स, वो होंगे। T2 second trophic level primary consumer, T3 third trophic level secondary consumer, T4 fourth trophic level tertiary consumers। और ये तमाम जो है ये हमने अभी इसमें डिस्कस किए हैं फिगर में कि ये T's are the trophic levels. The variety of pathways in a food web help to maintain the stability of ecosystem. कि जितना बड़ा फूड वेब होगा उतना इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आउल्स प्रे ऑन रैबिट्स एंड माइस। आउल्स जो है वो रैबिट और माइस खाते हैं। इफ अ डिजीज रिड्यूसेस द रैट पॉपुलेशन, a fewer plants are consumed. अगर रैट्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, इनकी पॉपुलेशन जो है वो किसी वजह से ज्यादा शिकार हो जाएगी, तो फिर प्लांट्स भी कम इस्तेमाल होंगे, क्योंकि रैट्स तो प्लांट्स को खाते हैं। The larger plant population produces more fruits and seeds. अगर रैट्स कम हो गए तो प्लांट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे और फिर फल और सीड ज्यादा बनेंगे, which in turn support larger mouse population. और फिर जब ज्यादा फ्रूट्स और सीड्स होंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रैट्स और माउस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। The increased number of mice become the major food source for the owls. और फिर वो आउल्स का शिकार बन जाएंगे। Rabbit population gradually increases and these primary consumers again become a food source for the owl. The nature maintains a balance. तो कभी भी एक ऑर्गेनिज्म एक लेवल से नहीं बढ़ता। अगर रैट्स की या माउस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो सीड्स और फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो फिर आउल्स को बहुत सा शिकार मिलेगा और आउल्स जो है वो उनको ज्यादा खाना शुरू कर देंगे और उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी और आउल्स की बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें खुला खाना पीना मिल रहा है। लेकिन जब माउस कम हो जाएंगे, आउल्स को शिकार नहीं मिलेगा, तो फिर आउल्स कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये नेचर जो है ये बैलेंस मेंटेन रखती है। एक स्पीशी या एक पॉपुलेशन जो है वो एक हद से बढ़ नहीं सकती, वो एक हद में रहती है और नेचर खुद उसको कंट्रोल कर लेती है, कि फिर उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो रखे हुए होते हैं और वो चेक्स बैलेंसेस जो है वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन एक सिंपल फूड चेन जिसमें हम सिर्फ
एक लाइन में लिंक्स देखते हैं कि ये इसको खा रहा है और ये इसको खा रहा है, लेकिन जब बहुत सी फूड चेन्स मिक्स हो जाती हैं या इंटरकनेक्ट हो जाती हैं तो ये फूड वेब बन जाता है, और फूड वेब में फिर बहुत से लिंक्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। जैसे बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं, उनको खाने वाले बहुत से प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, उनको खाने वाले बहुत से सेकेंडरी हैं जो मुख्तलिफ लेवल्स पे उनको खा रहे हैं, उनको खाने वाले टर्शरी हैं, टर्शरी प्राइमरी को भी खा रहे हैं, सेकेंडरी को भी खा रहे हैं, उन्हें जो मिलता है वो उसको खा रहे हैं। डेथ और डिके के लिए तो डिकम्पोजर्स ही हैं जो कि T5 होंगे। तो अगर एक बड़ा फूड वेब हो या बड़ी फूड चेन हो तो उसमें 5 लिंक्स होते हैं या 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं मैक्सिमम, और अगर छोटी फूड चेन हो तो उसमें 3 भी हो सकते हैं। सिर्फ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर हो गए। तो ये फिर जो बड़े बड़े इकोसिस्टम होते हैं उनमें बड़े बड़े फूड वेब्स होते हैं, और जितना बड़ा फूड वेब होता है उतना वो बैलेंस रहता है, क्योंकि आपस में वो तमाम इंटरकनेक्टेड होते हैं, और फिर नेचर खुद उसको मेंटेन करती है, बैलेंस मेंटेन रहता है उसका, कि एक चीज अगर एक हद से बढ़ नहीं सकती, उसके ऊपर चेक और बैलेंस होता है, और वो फिर खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। और अब हमने आज इसके छोटे छोटे काफी सारे पॉइंट्स जो हैं वो कर लिए हैं। अब कल आपको मैं सक्सेशन कराऊंगी, और सक्सेशन का एक ही टॉपिक करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, इसलिए हम उसको फिर डिटेल में करेंगे। साथ फिर मैं आपको कल के लेक्चर के बाद आपको मैं थोड़ा सा काम दूंगी, आपने वो फिर करके मुझे दिखाना है, कुछ डेफिनेशंस दूंगी और आपसे इसके बारे में फिर पूछूंगी। बहरहाल अभी देखें, अल्लाह खैर करे, ये भी पता चल रहा है कि 15 से जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो खुल रहे हैं, तो अल्लाह करे कि हालात अब क्लियर रहें और कोरोना पेशेंट्स और ज़्यादा ना हो और कम हो, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएं, ताकि फिर स्कूल कॉलेजेस खुलें और फिर हम रेगुलर कॉलेज में अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू करें। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।